Our IU is also present to March. Present, he was also present on the last date of the hearing. इसमें एक चीज बता दीजिए थोड़ा सा, ये है सेक्शन कौन कौन से हैं? जी ऑब्लिक 4 है या और कोई? P 4 Your Honor. P 4 of the Female Act. Only. And rented property or money? Rented property or money? For 1.80 crores is what they Yeah, say. money है ये. Yes, they say that it is pursuit of crime, Your Honor. They don't say whether it is in form of tangible money or not. They say that this is the amount of the pursuit of crime that is involved in this case. उसको टेंटेड मनी आपको बताना पड़ेगा. टेंटेड मनी क्या है या प्रॉपर्टी? भाई पूरी उनकी संपत्ति वो टेंटेड नहीं कर सकते क्योंकि सभी चीज वैध है. अंडर लाइसेंस काम कर रहा था वो. पूरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कहीं पूरे आया टैक्स नहीं की है. अदायगी किया है वो. टेंटेड मनी कैसे होगा ये बताइए. इन्वेस्टिगेशन में आपको बताना है कि कैसे आपने वो फिगर रीच किया, बिकॉज आपकी इन्वेस्टिगेशन में एज पर माय इंस्ट्रक्शंस ऐसा कुछ भी नहीं है that this property was acquired from that pursuit of crime. ऐसा कुछ भी नहीं. बताइए, आइयो बताइए. सेक्शन 3 सी मतलब टेंटेड मनी है. हमको लगा 3 में ही तो आर प्रॉपर्टी. This is for explanation. He's going to read the section 2, section clause 5 of explanation, which read as, for the removal of right is hereby clarified that the term property includes property of any kind used in the commission of an offense. हाँ बिल्कुल. यूज वही तो यूज. My lord, दिस ऑफेंस. My lord, this was the money used to import the poppy seeds. तो वो तो लीगल है उनका, तो अंडर लाइसेंस है. There is no tax evasion, concealment. There is nothing concealment. Income tax में पूरा रिवील है प्रॉपर्टी. but our defense is only that as per the under the section 50 of the PMLA, all the other persons has been stated that his role has been involved. He is the keeping of the But acquisition is that licenses were acquired fraudulently. That is the only day one से एक ही argument कर रहे हैं. Section 50 statement, section 50 Through that license, poppy seeds were imported. So that's why that is a tented. आप टेंटेड अमाउंट बताएंगे ना, ठीक है. Sir, that amount is only बेनामी एजेंसियां चला रहे थे. लेकिन सभी अमाउंट जो है ये इनकम टैक्स की यदि शो किया गया है, जैसा कहना है इनका, कोई टैक्स एवेशन नहीं है, कोई कंसीलमेंट नहीं है. Sir, our stand is only that they are taking the fraudulently license and doing the business, or entire doing the business. So on the amount which is doing the business from that is that amount. बता रहे हैं कैसे इसको कहेंगे आप टेंटेड अमाउंट. Sir, टेंटेड अमाउंट भाई देखिए जो टैक्स में छुपा दिया गया क्या हमारी इनकम ये है, sir, that उसको कह सकते हैं एक बार प्रेमा पेशाई. sir, जो ब्लैक मनी है इनके तो नंबर 1 के मनी जैसा बता रहे हैं अब तक आर्गुमेंट में जैसा आया 6 साल लग नहीं रहा है. Sir, this is the other one. अब पूरी प्रॉपर्टी को कहा था कि टेंटेड Sir, as अमाउंट per the section क्या होगा, 3, क्या आधार है आपके पास करने के लिए? Sir, only the section 3 or section 3 subclause 5 of the explanation is clearly stated, so we are including all the amounts which they are used in. कैसे वही हमको बताएं कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं पूरे अमाउंट को. Sir, it is come under the proceed of the crime, sir. The business. इनको बताने दीजिए, बताएंगे. आप तो बाद में आएंगे, पहले ये तो बताओ. Our argument is that the licenses were obtained fraudulently by concealing the true nature of these entities. Fraudulently. That predicate offense is 420, 417, 120B. So that fraudulent acquisition of the valuable security. That licenses are a valuable security as per section 30 of IPC. So
that license were obtained fraudulently. आपने तो अपने पीसीआर जो क्या बोलते हैं उसमें तो लिखा है कि सब कुछ का अंदर लाइसेंस किया जा रहा था। License he आपने लिखा है उसमें। license he dishonestly obtained. ऐसा कहाँ लिखे हैं आप बताइए हमको पीसीआर में। CR में कहाँ पर? ये शेड्यूल ऑफेंस है मैडम। शेड्यूल ऑफेंस तो हो गया, ठीक है उसका। तो ये शेड्यूल ऑफेंस है, तो इसी शेड्यूल ऑफेंस से जो लाइसेंस ऑब्टेन हुए थे, उन लाइसेंस से जो भी इंपोर्ट नहीं, वो हम फ्रॉडुलेंट लाइसेंस कहाँ है? ये लाइसेंस फर्जी है। वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, वो एफआईआर में लिखा। सर फर्जी नहीं, फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग द इंपोर्ट। अच्छा, डिसऑनेस्टली 420 का सेक्शन जो लगाया है। License is not fraudulent. They obtain the license they want to. फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंट They उस लाइसेंस से जो भी कहाँ procurement हुआ है, है सब कहाँ ऐसा बताइए। सर ये रोल ऑफ आसिफ हनीफ थारा के इसमें मेंशन किया हमने किस पेज में? सर इन रिप्लाई और पेज नंबर 9 नहीं पहले ECIR और ECR में कोई वो आपने टेंटेड प्रॉपर्टी या अमाउंट भी नहीं लिखा है। that time quantification नहीं हुआ। एडमिटेडली गिरफ्तार कैसे करेंगे? वही बार बार प्रश्न आ रहा है कि जब आप खुद ही श्योर नहीं है, सीआर आपका मौन है इस पॉइंट पर, कैसे गिरफ्तार करेंगे आप? ऑब्टेन करने की बात कर रहे हैं, वो फ्रॉडुलेंटली का जो आप रीजनिंग लेके आते हैं वो बेनामी से लेके आते हैं, क्योंकि बेनामी था इसीलिए फ्रॉडुलेंट है। कोई इसमें मेंशन करे ना सीआर। That is what from day one we have been submitting, your lordship, that they don't have a case against us. देखिए, विरोध करना है तो खुल कीजिए और नहीं करना है तो चुप रहिए, दोनों बातें हैं। हम सब समझ रहे हैं कंडक्ट। करना है तो खुल कीजिए, नहीं करना है चुप रहिए। बस करने खड़े, जो क्वेश्चन पूछा रहा है इसका आंसर दीजिए आप। It is mentioned It in is mine. आप पीसीआर में बताइए कहाँ ऐसा लिखा है। स्टेट अमाउंट का कुछ उल्लेख ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है सीआर। जहां तक हम अभी तक पढ़े, Number 8 it is not clearly stated that the fraudulently, but they are Asif Hanif Thara and other unknown private persons and public servants. कहाँ पर है? ECIR पेज नंबर 8, पेज नंबर इसमें जो इंटरनल पेज नंबर 8 सर, ECIR का नीचे की तरफ पेज नंबर मार्क। अच्छा हाँ, पैरा नंबर 16 नीचे से पैरा नंबर 16 सेकंड पैराग्राफ Roman 16। यह भी देखा गया सेक्शन 120B हाँ के तहत। after further in the view of the above, after 3 lines mention FIR registered by PS हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं? सर वो फ्लैग लगाया था ECIR 15 और 16 दोनों में है। 15 ये FIR है जो वहां दर्ज हुआ है मुरार। सर इसी में है क्या? हाँ नहीं, इसमें नहीं है सर, इसके बाद ECIR है। हाँ इसी है। Coordinate फैक्ट ऑफ द केस enforcement case information report नहीं, इसका पैरा कौन सा है? सर 15 and 16 of the ECIR lordship। I can सब पैरा 7 केस डायरी दी थी, उस केस डायरी में ECIR की कॉपी। इसमें भी फाइल किया था ना इसी। नहीं सर, इसमें सिर्फ FIR रिप्लाई की तरह हम बिकॉज ऑफ दैट रीजन की केस डायरी सबमिट कर दी। आप उसको खोल के बता दीजिए। सर सेक्शन 120B 16 Section 120B. Thereafter, after the third line, further in view of the above, from the fourth line,
Mention FIR हाँ, registered. further in view of above. Mention FIR registered by PS Murad, Delhi, the district Gwalior, Madhya Pradesh. It appears that Shri Asif Ali Thara and other unknown persons, private persons, and public servants indulged in criminal conspiracy by way of opening Benami entities in the name of his employees with the intent to obtain import license of poppy seeds in violation government guidelines in the manner as aforesaid for undue intangible gains. Thus, it appears that POC has been generated by the accused person by indulging in import of poppy seeds on the strength of import license in the name of Benami companies. Further, it is likely that the proceed of crime generated through the scheduled offence and related criminal activities as well. That is my intention. It is not. तो आपने जो obtaining का है fraudulently, इसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन? सर, इसके बारे में सिर्फ केवल पैराग्राफ 15 में थोड़ा सा इसकी जस्ट अबाउट रनिंग पैराग्राफ में मेंशन है. इसमें इतना सा बोला है. May just permit me to read from the prior paragraph of the 15. For fraudulently obtaining import authority. Sir, same just page number 8 में सबसे first paragraph ऊपर running paragraph. First from the very top of the line. सर इसी में top line से. हाँ. Bank and other under section 120B, 417 and 420 of the Indian Penal Code 1860 for fraudulently obtaining import authorization in the name of Benami entities by cheating the government authority in the manner as aforesaid with the intent to acquire wrongful gains for himself by circumventing the existing guidelines issued by Department of Revenue, Ministry of Finance, and obtaining maximum share of contrary quota by misleading the authorities and concealing the fact from them. ये क्या आपने कंसर्निंग अथॉरिटी से कोई क्वेरी किया क्या? सर, फ्रॉडुलेंटली कैसे प्राप्त किया है? सर, हमने ऑन 30th of October लेटर लिखे पर उन्होंने सर्च करी परंतु कोई डॉक्यूमेंट अभी तक तो नहीं आया. बात आने की नहीं, देखिए सब आता तब तो आप एक ड्यू बनाते ना. गिल्ट है, आपने गिल्टी होल्ड कर लिया पहले ही. सर, एडमिटेडली सीबीएन से अभी कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुआ है. वही अरेस्ट क्यों किया आपने जब ड्यू बनाने के लिए कोई आधार आपके पास नहीं है? अभी रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट. बिकॉज़ ऑफ वी आर प्री-अरेस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट रीजंस कि वी आर इन dilemma that he is run away from it. ऐसा कोई ओकेजन बताने? Because of that reasons, we are also issued the LOC in this matter. That LOC was unconstitutional. That is why it was struck down. और वो LOC तो FEMA के उसके अंदर किया था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं. सब कुछ भी कवर अप करने के लिए अगर कुछ भी बोलते रहे तो that is a never ending process. एक आर्गुमेंट हुआ, आपने जाके स्टेटमेंट ले लिया जब यहाँ आया, जिसका कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, कानून में परमिटेड नहीं. सही चलता है क्या ये इस टाइप के केसेस में? मतलब दिस 420 आईपीसी प्रेडिकेट ऑफेंस वो तो आपने भेज दिया, वो आपने भेज दिया. पुलिस आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई एज स्टेटेड बाय काउंसिल फॉर द डिफेंस. कोई कार्रवाई नहीं की गई. 1 साल तक हो गया, न तो उसका खोजबीन किया गया, न नोटिस दिया गया, न अरेस्ट किया गया, न चार्जशीट फाइल किया गया. शेड्यूल्ड ऑफेंस. Sir, everything is which is in front of us, sir. What we are investigating is committed. Yes, sir. हम वही जानना चाहते हैं. अरे हम थोड़ा सा मिशन ये सब पढ़े तो लगा कि प्रिंटेड अमाउंट क्या है, तो आया नहीं किसी के. Sir, as per the section 3 sub clause 5 of the explanation. फुलफिल तभी सेक्शन 3 होगा जब प्रिंटेड अमाउंट आप बताएंगे. Sir, tented amounts, whatever by after obtaining the license and whatever he has been committed. तो आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा. आप कंसर्निंग अथॉरिटी से कोई उनका क्वेरी नहीं Sir, किए. we are trying to. कैसे We are प्राप्त on किया? 30th of October. We are issued the search warrant on the department, but we are not getting some. Still yet we are not getting. But we are in hope यही that. था कि अगर आपत्ति कीजिए तो बढ़िया कीजिए, नहीं कीजिए तो हट जाइए. क्यों वो दोनों तरफ चल रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है. That is सब कुछ कोर्ट कराए, ये क्या संभव है क्या? उसने कोर्ट जो करना हो करे, हमसे कोई मतलब नहीं. बताइए तो जो पूछ रहे हैं क्वेरी बताइए.
के लिए कुछ है नहीं आपके पास। कहाँ इसमें कोई टेंटेड अमाउंट का लिखा है? सर PCIR में मेंशन है पेज नंबर 7। Sir, it is stage of the when PCIR has been recorded. Sir, thereafter we are investigated and we are that amount has been taken off. प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपने व्यू बनाया, उस पर्पस से हम देख रहे हैं। व्यू बनाया कि प्राइमा फेसाई गिल्ट है ये। Sir, in paragraph number 16, it is mentioned that it's appeared that POC number? has para number 16, page number 8. The second paragraph of the Roman 16. हाँ, Thus, तो पढ़े it अभी ना? appears that पढ़े अभी ना आप? नहीं सर, इसके बाद वाला पैराग्राफ Roman 16 में सब पैराग्राफ सेकंड। हाँ, Thus, it's appeared that POC has been generated by the accused person by indulging in import of poppies on the strength of import license in the name of Benami companies. So thereafter we investigate, and after that investigations, we found that amount of 400 and something, 140 point something. आप लोग उस चीज को नहीं समझते जो हम पूछना चाह रहे हैं। देखिए सेक्शन 19 है समझ में, Yes, sir. Yes, sir. जो आपको प्राइमा फेसाई Arrest करने की बनाना section है, 19 yes, sir, power of मिलती the है, आपके पास आए नहीं, आपने व्यू बना लिया। after प्रॉब्लम यही है, 19 मैंडेटरी है और आप गिरफ्तार करके पेश कर दिए, कस्टडी भी नहीं लिए, जेआर ले लिए और बाकी अवेटेड है। तो आपने सेक्शन 19 का कंप्लायंस नहीं किया। मटेरियल बता रहे हो, मटेरियल है नहीं आपके पास, बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ कोई कुछ पर्सन। ये आयु statements of 9 employees. आपने बोला एकमात्र एक्यूज है, पिछले बार सस्पेक्टेड पर्सन है। एक चीज तो बोलिए ना कुछ भी, कभी बोलते हैं देयर इज नो अदर एक्यूज पर्सन, फिर बोलते हैं सस्पेक्टेड पर्सन आर सो एंड सो। हम क्या लिखें आपका, ये बताइए ना, क्या यही सब लिख दें? इसमें मेंशन नहीं है, क्लियर कट मेंशन नहीं है। एंड Sir, ECIR prima facie we are recorded the ECIR. Thereafter the investigation has been carried out. देखिए सीआरपीसी प्रावधान अलग है, इसके प्रावधान अलग है। प्राइमा फेसाई उसमें आता है आईपीसी का अपराध, लेकिन यहाँ आपको सेल शब्द का यूज किया है। आपको व्यू बनाने के लिए भी इसीलिए लंबा प्रोसीजर चलता है ना। जब आप सब करेक्ट कर लेंगे, फिर कोई कंफ्यूजन होती उससे पूछेंगे, नोटिस देंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसका स्टेटमेंट लेंगे, इसके बाद व्यू बनाएंगे आप। सेक्शन 19 ने कुछ किया नहीं ये सब। हम ये पूछ रहे हैं टेंटेड अमाउंट या प्रॉपर्टी का कोई क्लियर कट मेंशन नहीं है इसमें, यह है सही है। Custodial interrogation is not required as stated by you. Just now. Right.